Hello, a very good evening, everyone. Welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya. This is Dr. Priyanka, and we were studying this chapter, Breathing and Exchange of Gases. So, hope you remember what all we have covered in the previous lecture. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं Exchange of Gases. We are also going to study about mechanism of breathing. So, before starting the session, everyone who all are present and watching this session, kindly say hi, hello in the chat box, mark your presence so that we can proceed. So hope all of you are doing fine. अभी तक इस चैप्टर में बच्चों हमने क्या पढ़ा है? अभी तक इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम दैट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड राइट इन द प्रीवियस लेक्चर. हेलो मेघा, गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग फाइन. मेघा, अपने फ्रेंड्स को भी बुला लिया करो इस सेशन में, बिकॉज दीज सेशंस आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल बेटा. राइट, वाई? बिकॉज वन थिंग इज इट इज NCERT बेस्ड. सेकेंड थिंग इज ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वी आर कवरिंग इन डिटेल जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. आई एम ऑल्सो टेलिंग यू दैट विच ऑल आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. राइट, सो आज हम कवर करने वाले हैं exchange of gases and mechanism of breathing. Hope you are ready. Fine. At the end I will be also asking some questions so that I will understand whether you are paying attention or not. So everyone, please don't forget to like and share this session. Okay, like this session, share this session with your friends and invite your friends as well in these live sessions. तो चलो आगे बढ़ते हैं. एंड बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड ऑलरेडी फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस. तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े थे बेटा लास्ट लेक्चर में फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस? सबसे पहले तो मैंने बताया था कि ह्यूमंस के पास होता है लंग्स फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज टर्म्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन. फिर हमने पढ़ा था कि देर आर सर्टन एनिमल्स, अदर एनिमल्स जिनके पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं. लाइक इंसेक्ट्स के पास होता है ट्रैकियल सिस्टम. गिल्स एंड बुक गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं इन आर्थ्रोपोडा. राइट, बुक गिल्स कहाँ मिलता है? लिम्यूलस में मिलता है, इजंट इट? बुक लंग्स भी मिलता है इन स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स दैट आर क्लासिफाइड अंडर एरेक्निडा. Then I have also asked you about branchial respiration. If you remember, branchial respiration is respiration through gills. Then we have discussed about cutaneous respiration as well. That is respiration from moist skin present in frog and earthworm. Remembered? चलो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. इसके साथ ही हमने पढ़ा था, yes, very good मेगा, we have seen that there are rings of cartilage surrounding the trachea, primary, secondary and tertiary bronchioles and initial bronchioles. Okay, so यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ आपको मिलता है कार्टिलेज के रिंग्स. कौन से कार्टिलेज के? हाइलिन कार्टिलेज के. राइट, now why I am revising this? Because we are going to study about mechanism of breathing. मैंने एक पॉइंट आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था that breathing in humans is negative pressure breathing. So we have a negative pressure breathing. Okay, so what do we understand about this negative pressure breathing and why it is important? Let's understand. Negative pressure breathing होता क्या है? So there is a decrease in the intrapulmonary pressure, okay, as compared to the atmospheric pressure, because of which air is going inside the lungs. But this is not the same type of breathing that is present in other animals as well. क्योंकि अगर आप फ्रॉग की बात करोगे तो फ्रॉग में होता है पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग. राइट, सो बिफोर गोइंग अहेड विथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, लेट्स सी द एनाटॉमी ऑफ आवर thoracic chamber. राइट, lungs are present in the thoracic chamber बेटा. So what is the boundary of thoracic chamber? Let's understand. Thoracic chamber की boundary
में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. Okay, given in NCERT, asked in examination. Pay attention, everyone. So ventrally there is sternum. So ventrally there is sternum. Sternum को breast bone भी बोला जाता है. So here you can see a flat bone is there. Breast bone which is termed as sternum. Right? तो dorsally क्या होगा? So dorsally in your thoracic cavity there will be vertebral column or the backbone. So dorsal का मतलब है at the back. So thoracic chamber will have vertebral column at the back. What will be present laterally? Let's understand. Laterally, can you see here? Laterally there are ribs. Okay. कितने pairs होते हैं ribs के? There are 12 pairs of ribs. Okay. True, false and floating ribs, if you remember. True ribs are the one that will connect sternum and vertebral column. जो आगे से sternum से connected है और पीछे vertebral column से connected है, उन ribs को हम बोलते हैं true ribs. Okay, so 7 pairs are true ribs, right? So out of these 12 pairs of ribs, 7 pairs true ribs के होते हैं, right? 3 pairs false ribs के होते हैं and लास्ट के 2 पेयर्स फ्लोटिंग रिब्स के होते हैं. सो व्हाट आर फॉल्स रिब्स? फॉल्स रिब्स आर डॉर्सली कनेक्टेड टू द वर्टिब्रल कॉलम. फॉल्स रिब डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, बट वेंट्रली आप देखोगे 3 pairs of ribs, they will not connect to sternum directly, but with the help of costochondral cartilage they will connect with the 7th pair of ribs, right? लास्ट के जो 2 pairs होते हैं बेटा वो होते हैं floating ribs. मतलब dorsally they are connected to vertebral column but ventrally they are just free or floating and they are important for protecting your kidneys. ठीक? Now thoracic chamber में नीचे you will see, can you see? Okay, so there is a dome shaped diaphragm, very very important for breathing. So ये dome shaped diaphragm, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर कोई पंचर होता है या if there is damage to this diaphragm, your breathing will stop. We will see how. As today we are going to discuss inhalation and exhalation के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि what is the significance of diaphragm. And originally ये diaphragm क्या होता है? Dome shaped होता है. Now let's understand how inhalation or inspiration will take place. ठीक है? So when we talk about inspiration or inhalation, इसका मतलब है breathing in, right? Now when we talk about breathing in, it is an active process. Can anybody tell me in the chat box what do you understand by active process? आप देखोगे कि exhalation passive process है, inhalation active process है, तो इसका मतलब क्या हुआ? Okay, what is the difference? Okay, so this is active process. Okay, that means actively the muscles are contracting. यहाँ पे कुछ muscles contract करेंगी. Can you tell me the names of the muscles? Yeah, with the help of, yes, energy consuming process. Very good. So energy consuming process जिसमें ATP का utilize हो रहा है, that is active process. So with the use of this energy and ATP, the muscles will contract here and there will be some changes and that will lead to change in volume and the pressure. चलो देखते हैं क्या क्या होता है event. So इस active process में या inhalation में there is contraction of 2 muscles. 2 muscle contract करेंगे.
What are they? There will be muscle contraction. Which two muscles? Diaphragm and external intercostal muscles. Okay, so these two muscles will be contracting. अब आप बोलोगे मैम ये कोस्टल मसल्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दो नाम आपने सुने होंगे. सो व्हाट आर दीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल? इंटरकोस्टल मसल्स. So if these are ribs, if this is the sternum, this is one rib, this is the adjacent rib. अगर ये ribs है, ध्यान से देखना. So in between these two ribs, you will find muscles. एक muscles होगी जो बाहर की तरफ present होगी, like this. ठीक है? कुछ muscles होंगी जो ribs से attached अंदर की तरफ present होंगी. Okay, like this. ओके, सो जो बाहर की तरफ होंगी डेफिनेटली दे आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, राइट. दूसरे कलर से बनाते हैं सिंस इट इज नॉट विजिबल. सो ये जो मसल्स हैं ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है. यू सी येलो कलर से जो मैंने बनाई है, और ये रेड एंड ब्लू कलर की जो मसल्स है वो अंदर की तरफ से प्रेजेंट है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. ये कौन सी हो गई? एक्सटर्नल हो गई. इंटरकोस्टल मसल. ये ब्लू वाली कौन सी हो गई? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. सो आपने देखा आई हैव रिटन जस्ट डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. मैंने सिर्फ दो ही मसल्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम, बिकॉज ओनली दीज मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्टिंग एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन. ठीक है, सिर्फ यही दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. And what will happen when these muscles are contracting? क्या होगा? क्या होगा? See, when these muscles are contracting, we have seen that the diaphragm is dome shaped. So initially diaphragm कैसा होता है बेटा? Dome shaped का होता है. ठीक है? But because of contraction, it will be pulled down. तो जब diaphragm contract कर रहा है, initially ये dome shaped का था, very good. Now ये नीचे की तरफ जाएगा, and when external intercostal muscles are contracting, because of which sternum and ribs will move outward and upward. A very interesting line written in NCERT. Okay, so because of this contraction of muscle, the diaphragm and the external intercostal muscles, okay, will move downward, and because of contraction of external intercostal muscles, the ribs and sternum will move out and up. ठीक है, तो ये बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करेगा, और दिस विल बी इंक्रीजिंग. ऐसा होगा तो क्या होगा? दिस विल बी इंक्रीजिंग द पल्मोनरी वॉल्यूम. फर्स्ट द thoracic volume will increase, thoracic volume will increase, pulmonary volume will also be increasing, and जब वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर क्या होता है? कम होता है. सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर will reduce. Okay, and when intrapulmonary pressure is less, this negative pressure will pull the air from the atmosphere. Understood? So this is how you will inhale. Now you will be confused कि मैम आपने external intercostal muscle का नाम ले लिया, diaphragm muscles का नाम ले लिया. What about internal intercostal muscles? What about abdominal muscles? Anybody here? Abdominal muscles का क्या रोल है? Internal intercostal muscles का क्या रोल है? So basically they will be taking part in, anyone? They will be taking part in, बोलो they will be taking part in forceful breathing.
नॉट इन एक्सेलेशन। ऐसा मत सोचना कि इनहेलेशन के लिए तो ये मसल्स इंपॉर्टेंट है बट एक्सेलेशन के लिए मे बी दूसरे मसल्स इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं। यू विल सी दैट एक्सेलेशन में कुछ खास होता नहीं है, जस्ट ये सारे मसल्स ही रिलैक्स होता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इनहेलेशन में ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक्सेलेशन में हम देखेंगे बस यही जो है रिलैक्स होंगे। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो व्हाट विल हैपन इन एक्सपिरेशन और एक्सेलेशन? There will be relaxation of the same muscles. So there is relaxation of diaphragm and external intercostal muscle. Okay, so सिर्फ यही जो muscles हैं वो relax करेंगे and since it's a passive process, ये क्या है? ये पैसिव प्रोसेस है। ओके, दैट मीन्स देयर विल बी नो यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, बस ये सारे मसल्स रिलैक्स करेंगे बिकॉज ऑफ विच द डायफ्राम विल अगेन बिकम डोम शेप्ड, द स्टर्नम एंड रिब्स विल मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। सो डायफ्राम क्या करेगा इस टाइम पे? डायफ्राम फिर से डोम शेप्ड का हो जाएगा एंड स्टर्नम एंड रिब्स कहा जाएंगी डाउनवर्ड और इनवर्ड, जिसके वजह से अगेन थोरैसिक वॉल्यूम विल रिड्यूस, पल्मोनरी वॉल्यूम विल आल्सो रिड्यूस। सो एक्सपिरेशन के टाइम में वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है एंड प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। बॉयल्स लॉ, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा द एयर विल बी पुश्ड आउट ऑफ योर लंग्स। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हाउ एक्सपिरेशन विल टेक प्लेस एंड हाउ inhalation will take place. Now coming to forceful breathing, please remember that abdominal muscles, additional muscles are involved in forceful breathing, जैसे कि abdominal muscles हो गए and the next intercostal muscle. So increase in the thoracic volume will cause a similar increase in pulmonary volume. This is the line of NCERT. You can see here कि जैसे जैसे थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ विच द प्रेशर विल ड्रॉप। एंड यस, ह्यूमन कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन। ये ट्रू एंड फॉल्स की तरह नीट में पूछा जाता है दैट ह्यूमन्स कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। So additional abdominal muscles को use करके we can increase the strength of breathing, right? Like we do in yoga. Okay? So ये दोनों ही बहुत ही important lines NCERT की जिससे questions पूछा जाता है in NEET. Now, let's talk about exchange of gases. अब एक बार gases हमारे alveoli में आते हैं, then it should be exchanged at the level of alveoli. It should go in the blood, transportation should take place, and then again it should be exchanged at the level of tissue. So let's see how this process will work. So this whole process will work based on the difference in the partial pressure. Okay, so this whole mechanism will work on the difference of the partial pressure. Right? So if you are asked in NEET examination what is the main site of exchange of gases, तो आपको तो ये याद आएगा कि हाँ main site of exchange of gases तो alveoli भी है और tissue भी है, right? But अगर आपसे एक कुछ पूछा जाए तो आप बोलोगे lungs or alveoli because this is given in NCERT. So this is a line taken from NCERT that alveoli are the primary site of exchange of gases.
अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया तो आपको एल्वियोलाई ही मार्क करना है, आपको टिश्यू मार्क नहीं करना है, दो इट इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, नाउ बोथ हम मेजरली कौन से गैसेस के एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। एंड दीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस they will be exchanged based on their partial pressure. And what is the partial pressure? It is the pressure exerted by individual gas in the atmosphere, right? So because of this difference in the partial pressure, these gases will be exchanged by simple diffusion. The gases will move from higher partial pressure to lower partial pressure. We will be seeing in detail. So you need to remember the partial pressure of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere, in alveoli, in oxygenated, deoxygenated blood and tissue, because the movement of gases will be based on that difference, right? Now coming to the factors that affect द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस? सो दो ही फैक्टर्स हैं। ओके, आज जो नीट एग्जामिनेशन, तो उसको मैं स्टार मार्क करूंगी, नीट का फेवरेट क्वेश्चन। वन इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो जो गैस ज़्यादा सोल्यूबल है, जैसे यू विल सी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल देन ऑक्सीजन, तो जो गैस ज़्यादा सोल्यूबल है वो ज़्यादा रेट पे एक्सचेंज होगा, उसका डिफ्यूजन रेट विल बी मोर। सिमिलरली थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये डिफ्यूजन हो रहा है उसका थिकनेस भी मैटर करेगा। अगर मेम्ब्रेन थिक है सो डिफ्यूजन रेट विल बी लो और लेस। ठीक है, सो द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। सो जितना सॉल्यूबल है गैस उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन होगा, राइट? एंड जितना ज्यादा थिक है मेम्ब्रेन उतना ही कम डिफ्यूजन होगा। सो दिस यू शुड नो। इज इट क्लियर? दिस यू शुड नो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what is the partial pressure and how it varies from atmosphere to your tissue. ठीक है, तो ये टेबल again taken from NCERT and it is important to learn the values of the partial pressure. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि partial pressure होता क्या है. So it is the pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases. So this is partial pressure. Right? So in atmosphere, the partial pressure of oxygen is 159 millimeter mercury. Okay, partial pressure is denoted by millimeter mercury. But in alveoli, you can see it is 104 millimeter mercury. That means because of this difference in the partial pressure, oxygen will move from atmosphere to alveoli. ठीक है? We know that alveoli is surrounded by thin capillaries, which is the main site of exchange of gases. So in those capillaries, definitely there will be deoxygenated blood. So there the partial pressure of oxygen is very less, only 40 millimeter mercury. So because of which the oxygen will move from alveoli to the capillaries. नाउ कैपिलरी में जब ऑक्सीजन आ गया तो वो डीऑक्सीजनेट से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. सो दैट विल बी कन्वर्टेड टू ऑक्सीजनेटेड विथ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी. ठीक है, फिर से मैं बताऊंगी. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी एंड एल्वियोलाई में था ओनली 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी. तो इसके वजह से एल्वियोलाई में आया ऑक्सीजन कहां से, एटमॉस्फेयर से. नाउ सराउंडिंग द एल्वियोलाई देयर आर कैपिलरीज. कैपिलरीज में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत कम है, ओनली 40.
That means from alveoli the oxygen will go into the capillaries, right? Now जैसे ही ऑक्सीजन कैपिलरीज में पहुंचा, डीऑक्सीजनेटेड से ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, और अब कितना हो गया पार्शियल प्रेशर of oxygen in that blood, in oxygenated blood, 95 millimeter mercury. Now this blood when it will go to the tissues में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, ओनली 40. क्यों? क्योंकि वहां पे हो रहा है रेस्पिरेशन. क्या चल रहा है टिश्यूज में? टिश्यूज में चल रहा है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में देयर इज रेस्पिरेशन में there is utilization of oxygen, production of carbon dioxide, then definitely इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कम होना चाहिए, which is only 40. So इसका मतलब है now the oxygen from the capillaries will be delivered to the tissues. And can you see everything is based on just the partial pressure. जहां पर पार्शियल प्रेशर जिस गैस का ज़्यादा है वहां से वो गैस उस जगह पे जाएगा जहां पे पार्शियल प्रेशर कम है. ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू से. टिश्यू में क्या हो रहा है बच्चों? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन जो टिश्यू में हो रहा है वहां पे क्या यूटिलाइज हो रहा है? ऑक्सीजन. क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी है. अब ये 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है टिश्यू में. अच्छा, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? मेघा, रिमेंबर, पार्शियल प्रेशर इज द इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ सिंगल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें से ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है वो उसका पार्शियल प्रेशर हो गया. ओके, सिमिलरली हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं. नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. उसमें एक गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है? दैट इज द पार्शियल प्रेशर. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही गैसेस का पार्शियल प्रेशर देखते हैं, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके मेघा, और उसी पार्शियल प्रेशर के basis पे there is exchange of gases. Fine. So let's understand in tissue. At the level of tissue, what is happening? At the level of tissue, respiration is going on. Again यहाँ पर हो रहा है respiration. Respiration हो रहा है tissues में. That means oxygen is getting utilized. Carbon dioxide is formed. So when carbon dioxide is formed in the tissue, the partial pressure of carbon dioxide वहाँ पर ज़्यादा होगा. 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी है. Now tissues के आसपास होती है capillaries. We know we have a closed circulatory system. हमारा ब्लड तो कभी बाहर आता नहीं है ब्लड वेसल से, सिर्फ कहाँ रहता है? कैपिलरीज में ही रहता है, राइट? जो भी एक्सचेंज होना है वहीं से होगा. दैट मीन्स टिश्यू के आसपास बेटा कैपिलरीज तो होंगी ही. So surrounding tissues, right, there will be capillaries. Okay, उस कैपिलरी में ब्लड भी होगा, but that blood will have a less partial pressure of carbon dioxide, क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है. रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा था? टिश्यू में हो रहा था. ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम टिश्यू, इट विल मूव बैक टू द कैपिलरीज. वो कहाँ जाएगा? कैपिलरीज में जाएगा. तो अब कैपिलरीज में जो ब्लड था वो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया. क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया. क्यों हो गया? पे अटेंशन. व्हेन आई एम मेकिंग दीज टाइप ऑफ एरोज, इसका मतलब है कि देयर इज चेंज. ये जा नहीं रहा है कहीं पर, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, बस चेंज हो रहा है. So blood में, कैपिलरी में, when carbon dioxide will diffuse, that blood will become deoxygenated. Now the partial pressure of carbon dioxide will become 45 millimeter mercury. Right? Now when this blood will reach towards alveoli,
एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी, which is less than the partial pressure of carbon dioxide in the capillaries. So again the same thing will happen from alveoli, from capillaries the carbon dioxide will go into alveoli. एंड यस एटमॉस्फेयर में तो बहुत कम होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, सो दैट मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम एल्वियोलाई टू द एटमॉस्फेयर. सो दिस इज हाउ ऑल इट गोज. आप देख रहे हो कुछ एक ही पॉइंट है जो इस पूरे एक्सचेंज प्रोसेस को ड्राइव कर रहा है, एंड दैट पॉइंट इज पार्शियल प्रेशर. So oxygen, how it is going from atmosphere to tissue, again based on partial pressure, and how carbon dioxide is coming from tissue to the atmosphere, again based on the difference of partial pressure, जिसके वजह से diffusion होता जा रहा है. So is it clear? मेघा, संजीत, कई बार इन एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन ये वाले पार्शियल प्रेशर पूछे गए. एटमॉस्फेरिक एयर के एल्वियोलाई में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू समराइज इट. ये तो समझ में आया इतना, तो चलो समराइज भी कर लेते हैं मेघा, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो चलो हमें पता है कि ऑब्वियसली ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई फ्रॉम ब्लड टिल द टिश्यूज. ये तो हमें क्लियर है. तो ये वाला पार्ट ना ऑक्सीजन का हो गया, राइट. और हमें पता है दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई एंड एटमॉस्फेयर अगेन. तो ये वाला जो पोर्शन है ये किसका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया. ठीक है, अब चलो फिर से देखते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ये हमने देखा कितना है, 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी है. बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज हाउ मच, 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी. ऑक्सीजन विल गो फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई. क्लियर दिस मच, राइट. अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वैसे ब्लड में भी कम है एज कंपेयर टू एल्वियोलाई. कितना है, 95 मिलीमीटर मर्क्यूरी. ओके, सो बिकॉज ऑफ विच द ऑक्सीजन विल कम इन ब्लड एंड अल्टीमेटली टू द टिश्यूज. ओके मेघा, सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर बन रहा है टिश्यूज में, राइट, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन. टिश्यूज में क्या चल रहा है, रेस्पिरेशन. और आप देखोगे कि उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द टिश्यू. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन you will see that carbon dioxide will move from tissue to the blood and ultimately to the alveoli, right. So tissue से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, पहले ब्लड में जाएगा. 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी इसका पार्शियल प्रेशर है. फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जब एल्वियोलाई के पास पहुंचेगा, आप देखोगे कि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 40 है और ब्लड में 45 था. सो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलाई में. एंड अल्टीमेटली अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होता है, 0.3 मिलीमीटर मर्क्यूरी. सो बिकॉज ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट, okay, in the atmosphere. Just go through it once. This is the image taken from NCERT and this is what you are going to remember. कि कैसे ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू में पहुंचा, क्यों पहुंचा, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के वजह से एटमॉस्फेयर में आया, एंड कौन से फैक्टर्स वेरी करेंगे. क्लियर, ओके. सो नाउ मेगा, अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है. ओके, सो वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ कि दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के.
एक तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, राइट। तो जब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की और हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन solubility of oxygen and carbon dioxide, then you will remember that solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times higher than that of oxygen. तो इसका मतलब है ये जो पूरा एक्सचेंज का प्रोसेस हमने देखा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फास्ट रेट पे एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम रेट पे एक्सचेंज होगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिटरमाइन करता है। एंड दिस इज द लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, ठीक। नाउ चलिए बात करते हैं व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? हमने पढ़ा कि एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां पर मैक्सिमम एक्सचेंज होता है गैसेस का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई थिकनेस है इस मेम्ब्रेन की, पहले तो ये मेम्ब्रेन के लेयर्स हमें पता होना चाहिए, फिर कितनी थिकनेस है इस मेम्ब्रेन की जिसके अक्रॉस ये डिफ्यूजन हो रहा है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के आसपास आपको मिलेंगे कैपिलरीज, ओके। सो दिस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। तो जो पहला लेयर है वो है स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, राइट। सबसे पहले लेयर तो यही है, टोटल कितने लेयर है? 3 लेयर है इस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में। नाउ सेकेंड लेयर विल बी the layer of capillary which is termed as endothelium, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम बोलते हैं, okay। so what will be the second layer? it will be endothelium of capillary, right। तो तीसरी मेम्ब्रेन क्या होगी? तीसरी लेयर क्या होगी? तीसरी लेयर यहां पे होती है द बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, ठीक है। सो ये क्या है? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन पे बहुत, इस फिगर पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। पे अटेंशन टू दिस फिगर, ओके। सो दैट इज the basement substance, okay, and collectively this is termed as the diffusion membrane which is made up of 3 layers, okay अजय। so समझ में आया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के 3 लेयर्स कौन से हैं? एक तो होगा स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरा होगा एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ कैपिलरीज, और तीसरा मेम्ब्रेन होगा द बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। और थिकनेस कितनी होती है इसकी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो इन एनसीईआरटी इट इज रिटन दैट द थिकनेस ऑफ दिस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। एग्जैक्टली यही ऑप्शन आपको मार्क करना है जब भी आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाए। कितनी होगी थिकनेस? मन से नहीं बनाना है कि 1 मिलीमीटर से कम है तो मे बी 0.5 मिलीमीटर होगी, नहीं। एग्जैक्टली आपको क्या मार्क करना है? मच लेस देन अ millimeter. So this is the exact thickness rather than creating yourself a value, right? So like I told you, diffusion membrane is made up of 3 major layers. एक तो हो गया thin squamous epithelium of alveoli, ये वाली layer, दूसरा हो गया the endothelium of the alveolar capillaries, मतलब ये वाली layer, right? एंड तीसरा हो गया द बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। अंडरस्टूड? सो दीज 2 आर द इंपॉर्टेंट, यू कैन से की टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे नीट में, ओके। सो अगेन यू कैन सी that this is how
the carbon dioxide will go from from the capillaries to the alveoli, and this is how the oxygen will be transported from alveolar cavity to the capillaries, and then it will be exchanged and transported till the tissues, right? So yeah, let's discuss what all we have discussed in today's session. आज हमने क्या क्या डिस्कशन किए और मैंने क्या क्या बताया कि इम्पॉर्टेंट है और किस किस पॉइंट से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में. लेट्स अंडरस्टैंड. हाय, गुड इवनिंग. यस राहुल, चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या आज हमने पढ़ा. लास्ट लेक्चर में सिंस अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी कर चुके थे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए थे एनसीईआरटी में जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. मैं कितने बजे लाइव होती हूँ बेटा? मेरा 4 बजे ही ऑलमोस्ट क्लास होता है. ठीक है. नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे. इन्फिनिटी लर्न का जो नीट का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन दैट एंड यू विल बी एबल टू सी द नोटिफिकेशंस, राइट. सो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा थोरैसिक चैम्बर, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी था बिफोर गोइंग अहेड, है ना. अगर हमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए थोरैसिक कैविटी का एनाटॉमी. तो वो हमने पढ़ा, राइट. उसमें रोज क्यों नहीं लेते? रोज लेंगे मतलब बिल्कुल वी आर ट्राइंग, कि थोड़ा बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, बट या हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि रोज हमारी क्लासेस हो, राइट. सो थोरैसिक कैविटी का हमने पहले एनाटॉमी देखा कि वेंट्रल सरफेस में क्या है, डॉर्सल सरफेस में कैसे वर्टिब्रल कॉलम है. ठीक है. हाउ डायफ्राम इज देयर, डोम शेप्ड मसल डायफ्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग, इट इज देयर, राइट. लैटरली वी हैव रिब्स. इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट में बेटा? 3 क्वेश्चंस मिनिमम तो आते ही हैं. ठीक है. 3 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही हैं. थैंक यू मेगा, थैंक यू वेरी मच. सो फिर हमने क्या पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा कि इनहेलेशन होगा कैसे, एक्सहेलेशन होगा कैसे. सो इन दैट मैंने आपको बताया कि इनहेलेशन के लिए 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल है जो कंट्रैक्ट करेंगी एक्टिवली, जिसके वजह से इनहेलेशन होगा. एंड वो 2 मसल्स मैंने बताई सिर्फ डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम डोम शेप से हो जाएगा फ्लैट शेप्ड. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ मूव करेंगे? बाहर की तरफ एंड ऊपर की तरफ. वॉल्यूम बढ़ेगा थोरैसिक चैम्बर का, पल्मोनरी चैम्बर का. इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ओके. वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, क्या हुआ? देयर विल बी इनफ्लो ऑफ एयर. ओके ओके, श्योर बेटा. आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल मिल जाया करेगा. डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव ड्यूरिंग द लेक्चर, राइट. मैंने एक और पॉइंट आपको बताया कि एक्सपिरेशन को हम पैसिव प्रोसेस बोल रहे हैं. एक्सपिरेशन को हम पैसिव प्रोसेस बोल रहे हैं. क्यों पैसिव प्रोसेस बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर ना कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रही है. जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की थी पहले, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बस वही रिलैक्स कर रही हैं. हैव अ लुक. सो दीज मसल्स, जो डायफ्राम की हम बात कर रहे थे, वो डोम शेप से क्या हो जाएगा? वापस से क्या? या कंज्यूम्स नो एनर्जी. वेरी गुड. तो जो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, नीचे आई थी डायफ्राम, वो वापस से क्या हो जाएगा? डोम शेप्ड हो जाएगा. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स फिर से रिलैक्स करेंगे. सो स्टर्नम एंड रिब्स विल मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. वॉल्यूम हो गया थोरैसिक कैविटी का कम, पल्मोनरी चैम्बर का भी कम, प्रेशर हो गया ज्यादा, राइट. श्री चैतन्य का ऑफलाइन क्लासेस होता है? बिल्कुल होता है बेटा. महाराष्ट्र में, मुंबई में वी हैव ब्रांचेस ऑफ श्री चैतन्य. बिल्कुल है बच्चा. यस. तो उल्टा हो गया, जो भी हुआ था इनहेलेशन के टाइम में सब ऑपोजिट हो गया. तब क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया. देयर विल बी एक्सहेलेशन, एयर विल मूव आउट. ओके, राइट. ओके, ग्रेट ग्रेट. बिल्कुल मेरी क्लास में भी आप डेली आया करो. डेफिनेटली मैं भी आपको जाने लगूंगी. बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी बच्चे लाइव क्लास में आए. दिस इज रियली रियली गुड. नाउ यू विल से मैम कि आपने डायफ्राम के बारे में बता दिया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बता दिया. व्हाट अबाउट एब्डोमिनल मसल्स?
व्हाट अबाउट इंटरनल कोस्टल मसल्स, उनका कुछ रोल होता है क्या? हाँ, ये जो सारी बातें हमने की थी ये नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए थी। तो जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करते हैं तब एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का बात आता है। सो दैट्स वाई पे अटेंशन, दीज आर द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल श्योर मेगा बच्चा। सो क्या आप देख रहे हो कि एब्डोमेन के बारे में, एब्डोमिनल मसल्स के बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। सो डेफिनेटली जो एडिशनल मसल्स हैं एब्डोमेन में वो इंक्रीज कर सकती हैं स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग, स्ट्रेंथ ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बोथ, राइट, जैसे हम योगा के टाइम पे करते हैं। सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनसीईआरटी। फिर मैंने आपको बताया व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। आई टोल्ड यू कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक तो डिफ्यूजन से होगा और दूसरा इसमें मेन रोल होता है पार्शियल प्रेशर का, राइट मैम। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व नहीं होता क्या? नहीं मेगा, ओनली डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम पे वो होगा बट फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम पे, नॉर्मली नहीं, ठीक है। तो हाँ, इसमें हमने क्या देखा कि डिफ्यूजन एक तो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एंड वाई बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट, सिर्फ डायफ्राम से और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल से हमारा वॉल्यूम जो थोरैसिक चैम्बर का है वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है नॉर्मली। सो वाई टू वेस्ट एनर्जी इन कॉन्ट्रैक्टिंग अदर मसल्स इन द बॉडी। आपका बॉडी इतना ब्यूटिफुली डिजाइंड है, ओके, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू लर्न अबाउट इट व्हेन यू विल बी गोइंग टू MBBS। सो आप देखोगे कि इतना अच्छी तरह से आपका बॉडी डिजाइंड है और आपको बहुत मजा आएगा सब पढ़ने में, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी गई है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, वो ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैस को अफेक्ट करेंगे। 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो 2 फैक्टर्स जो मेंशन्ड है वो एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जितना ज्यादा सॉल्यूबल है गैस उतना एक्सचेंज ज्यादा जल्दी होगा, फास्टर रेट पे होगा। एंड दूसरा है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जितना थिक है ऑब्वियसली उसका एक्सचेंज गैस का उतना ही कम होगा, स्लो होगा, राइट। अच्छा, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है बच्चा। 1 सेकेंड रुको, अभी देखो जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी है, और जब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई तब 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी है। कम हुआ ना? यस। तो इसी वजह से ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू एल्वियोलाई और ऐसा ही चलता रहेगा टिश्यू तक, ठीक है। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू के लेवल पे ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर रेस्पिरेशन हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम, कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी समझ में आया ना। सो बिकॉज ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम टिश्यूज टिल द एटमॉस्फेयर, जहां पे सबसे ज्यादा होता है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ गए? सो ये वाला एक्सप्लेनेशन अगर आपने मिस किया है तो आप रीवॉच कर सकते हो वीडियो को, ओके। सो एक बार वीडियो को आप रीवॉच करना, तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है ना बेटा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको समराइज किया कि हमारे बॉडी में किस तरह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, राइट। एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है कि सॉल्युबिलिटी। हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बहुत अफेक्ट करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। सो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट। सो डायरेक्टली दिस लाइन इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन। फिर हमने देखा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन।
डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, बेटा हम किस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं? जो एल्वियोलाई और कैपिलरी से बनता है। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। एक तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, कौन कौन सी लेयर्स हैं? तो 3 लेयर्स हैं। एक तो एल्वियोलाई की लेयर है, एक तो एंडोथीलियम की लेयर है, और बीच में उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ये 3 लेयर्स मिलके क्या बनाता है आपका? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है नीट में वो ये, थिकनेस कितनी है इस मेम्ब्रेन की? कितनी है थिकनेस? मच लेस देन अ मिलीमीटर। यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। 1 मिलीमीटर से कम, 0.5 मिलीमीटर आपको नहीं मन से बनाना है। ओके, सो द थिकनेस ऑफ diffusion membrane will be much less than 1 millimeter. Okay, so this is how the gases are exchanged. This is how the breathing will take place in our body. Yes, very good. So मैंने आपको बताया कि NCERT के कौन कौन सी लाइन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम दीज 2 टॉपिक्स ऑफ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। 3 क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से बिल्कुल पूछा जाता है इन एग्जामिनेशन। So hope you have enjoyed studying with me. समझ में आया आपको? आपकी मेरी सारी क्लासेस आप देखोगे बहुत ही प्रोडक्टिव होंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कब होगी? मोस्ट प्रोबेबली ऑन थर्सडे और फ्राइडे, राइट? 4 बजे मेरी क्लास होती है। एंड एवरीबडी प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, इन्फिनिटी लर्न नीट चैनल। वहाँ पे ये PDF भी आपको मिलेगा, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो, ओह थैंक यू वेरी मच फॉर सो मच ऑफ लव। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।